मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मधलाजकर। इन दिस सेशन वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ एवरेज फ्रॉम द रिसेंट ईयर्स अरिथमेटिक एग्जामिनेशन। जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम आई एम रोहतक एज वेल एज आई एम इंदौर। स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT and you can also join WhatsApp channel. So first question, a very simple question. Question is saying average stipend of summer internship of an institute is rupees 20,000 per month. Recently, the institute announced increment of rupees 2,000 per month for all the students. The new average stipend of students क्या होगा? So initially, average stipend was rupees 20,000, and institute recently announced that increment of rupees 2,000 per month is for all the students. So सारी की सारी values will be increasing by rupees 2,000. Initially, average is 20,000. And all values will be increasing by 2000, so average will also be increasing by 2000, and hence new average A dash will be equal to 22,000 only. Straightforward question. ठीक है, if you are multiplying all values by certain number तो हमारा average भी multiply हो जाएगा by that number. If you are adding certain value to all the numbers तो हमारा average भी उसी value से increase कर जाएगा. If you are subtracting certain value from all the numbers तो हमारा average भी subtract कर जाएगा by that particular number. Okay, next question. The average spending of Lata Mangeshkar for the part of the week from Monday to Saturday is rupees 4200. She spent rupees 1200 on the Monday and rupees 1500 on Sunday that week. The average spending for the part of the week from Tuesday to Saturday will be which of the following? So 4200 is from Monday to Saturday. Okay, average spending for the part of the week from Monday to Saturday, that is equal to 4200. So if we assume Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and finally Sunday. Let us say spendings are A, B, C, D, E, F and G. तो हमें एवरेज गिवन है फ्रॉम A to F इनिशियल केस में कि A plus B plus C plus D plus E plus F this divided by 6 this is equal to 4200. तो यहाँ से हमें सम मिल जाएगा फ्रॉम A to F, A plus B plus C plus D plus E plus F that is equal to 4200 into 6. Okay, multiply नहीं करेंगे but this will be the average. Now this will be the sum and she spent rupees 1200 on Monday यानी कि value of A is equal to 1200 and rupees 1500 on Sunday that week. तो G is equal to 1500 and we need to find out average from Tuesday to Sunday यानी कि हमें चाहिए B plus C plus D plus E plus F plus G divided by 6. So if A plus B plus C plus D plus E plus F that is equal to 4200 into 6, तो A subtract कर दो तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रॉम B to F this value will be equal to 4200 into 6 minus 1200 and then G add कर दो तो plus 1500 and this has to be divided by 6. Okay, so first part 4200 into 6 divided by 6 this will be equal to 4200 and then 1500 minus 1200 is 300 so plus 300 by 6 which is equal to 50. So our total average will be 4250. Average will be 4250. Option C will be the answer. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, बट ये भी हमने लंबा तरीका ही अपनाया. शॉर्ट में क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है इनिशियली भी हमें एवरेज गिवन है 6 डेज का फॉर फर्स्ट 6 डेज एंड फाइनली हमें एवरेज चाहिए फॉर द लास्ट 6 डेज. तो हम अल्टीमेटली रिप्लेसमेंट ही तो कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है कि पहले 6 डेज का एवरेज हमें गिवन है, लास्ट 6 डेज का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है. तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा दोनों केस में चेंज नहीं हो रहा है तो हमें सम पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है. ठीक है, पहले भी हम जिन क्वांटिटीज का एवरेज दे रहे हैं वो टोटल 6 क्वांटिटीज है. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे. सो इनिशियली आवर एवरेज इज फॉर फर्स्ट 6 डेज एंड फाइनली आवर एवरेज फॉर लास्ट 6 डेज. तो हमारा रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है? मंडे को हम रिप्लेस कर रहे हैं संडे से. एंड वैल्यू ऑन मंडे इज रुपीज 1200 एंड वैल्यू ऑन संडे इज रुपीज 1500. सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ कितना? इंक्रीज है हमारे पास फॉर 300 रुपीज. सो एवरेज हमारा इंक्रीज करेगा बिकॉज वी आर रिमूविंग मंडे जहाँ पे कि एक्सपेंडिचर इज रुपीज 1200 एंड एडिंग संडे वेयर एक्सपेंडिचर इज रुपीज 1500. सो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आया है रुपीज 300 का टोटल में. तो एवरेज में इंक्रीज क्या गया? एवरेज वॉज 4200 प्लस टोटल में चेंज आया 300 का डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6. तो आवर आंसर विल बी 4250. यही काम हमने समझा
डिटेल में, बट शॉर्ट में हमें एग्जाम में सिर्फ इतना करना है 4200 प्लस 300/6 दैट इज 4250। और क्यों हमने इतना ही किया? बिकॉज देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑनली, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर चेंज हो रहा होता तब फिर हमें इस तरह से नहीं कर पाते। ठीक है, 4250 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, average age of a group of 9 friends is 22 years. Now Lovegear is the youngest and his age is 6 years. Then what happened to be average age of the group just before Lovegear is born? So age of Lovegear is 6 years. So question हमें पूछ रहा है कि what will be the average age of the group just before Lovegear is born? देखिए क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एवरेज एज बिफोर 6 ईयर्स। अब एज ऐसी चीज़ है सबकी साथ में डिक्रीज करेगी। ठीक है, सबकी सेम अमाउंट से डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारी जो एज है 1 साल बाद एज विल बी 1 ईयर मोर, और सबके साथ में यही होगा। ऐसा नहीं होगा किसी की एज 1 साल में 2 साल बढ़ जाए। ठीक है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो 22 ईयर्स इज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 9 फ्रेंड्स एट प्रेजेंट। सो क्वेश्चन आस्किंग 6 ईयर्स बिफोर। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट 6 ईयर्स, सबकी एज 6 से सब्ट्रैक्ट होगा तो एवरेज भी हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज विल ऑल्सो बी -6, 22 -6 विच विल बी इक्वल टू 16 ईयर्स। बट अभी आंसर मार्क नहीं करना है, वैसे तो ऑप्शन में गिवन भी नहीं है, बट आंसर अभी मार्क नहीं करना है बिकॉज स्टिल वी हैव 9 फ्रेंड्स। 16 ईयर्स द एवरेज एज एंड स्टिल वी हैव 9 फ्रेंड्स। बट इन 9 फ्रेंड्स में से एक पर्सन की एज 0 हो गई है। कौन है वो? लवगीर है। बट ये हम उसकी बर्थ के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं। जैसे ही वो बॉर्न हुआ उसके अगले दिन हमने एवरेज लिया, सो दैट एवरेज विल बी 16 ईयर्स बिकॉज नाउ वी हैव टोटल 9 मेंबर्स आफ्टर हिज बर्थ। ठीक है, अभी वो दोस्ती नहीं हुई उसकी, बट थोरेटिकली। ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि टोटल 9 फ्रेंड्स हैं, 9 फ्रेंड्स का एवरेज आया 16 ईयर्स। बट हुआ क्या, उसकी बर्थ से एक दिन पहले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन पहले लवगीर इज नॉट देयर, सो देर आर टोटल 8 फ्रेंड्स। सम चेंज नहीं होगा बिकॉज एक दिन बाद और एक दिन पहले एज तो 0 ही है। ठीक है, तो एज तो 0 ही है, तो हमारा सम चेंज नहीं होगा। सम अभी भी क्या रहेगा? 16 ईयर्स अगर हमारा एवरेज आया था आफ्टर हिज बर्थ, तो बिफोर द बर्थ और आफ्टर द बर्थ में क्या चीज चेंज नहीं होगा? हमारा सम चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा। तो सम ऑफ एजेस क्या आ जाएगा? दैट विल बी 16 इंटू 9। दिस इज सम ऑफ द एजेस, चाहे बिफोर देखो चाहे जस्ट राइट आफ्टर देखो। और क्योंकि बिफोर हिज बर्थ नंबर ऑफ मेंबर्स आर 8, तो डिवाइड बाई 8 कर दोगे तो हमें एवरेज एज बिफोर लवगीर्स बर्थ मिल जाएगा। 16 इंटू 9/8 विच इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन हो तो पहले सम निकाल लो। और 9 फ्रेंड्स हैं, 9 इंटू 22 कर लिया। अब सबको 6 ईयर्स पीछे लेके जाना है तो -6 इंटू 9 कर लिया। और जब सबको 6 ईयर्स पीछे लेके चले गया तो 6 ईयर्स पीछे राइट बिफोर द बर्थ ऑफ लवगीर देयर आर मेंबर्स इक्वल टू 8। सो भाई वही स्टोरी है, 9 इंटू 16/8। ओके, बस ध्यान नहीं रखना है कि लवगीर की बर्थ के बाद और पहले वाली कहानी है कि राइट आफ्टर हिज बर्थ एवरेज एज विल बी 16, राइट बिफोर हिज बर्थ एवरेज एज विल बी 18, क्योंकि सम तो चेंज नहीं होगा बट यस एवरेज पे फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज प्रेजेंस of employees of a company for yoga session in office on Monday, Tuesday and Wednesday is 32, and on the Wednesday, Thursday, Friday and Saturday is 30. If the average number of employees on all 6 days is 26, then number of employees who attended the session on Wednesday क्या होगा? So Monday plus Tuesday plus Wednesday that is equal to 32 एवरेज। ठीक है, सो एवरेज अगर हमारा 32 है, सो सम क्या होगा? सम विल बी 96। Monday plus Tuesday plus Wednesday, sum will be 96. And Wednesday plus Thursday plus Friday plus Saturday, sum will be एवरेज हमारा 30 है, 4 डेज के लिए है, तो sum will be 30 into 4 120. Now average of all the 6 days is 26, तो all 6 days का sum क्या आ जाएगा? Sum of all 6 days will be 6 into 26, that is 156. Now if we add these two equations, first है हमारा Monday Tuesday Wednesday, second है Wednesday Thursday Friday Saturday, दोनों को ऐड करेंगे तो Wednesday is common in both of them। देखिए वेडनेसडे का डबल काउंटिंग हो जाएगा, बाकी डेज एक एक बार ऐड होंगे। ठीक है, बाकी डेज सारे के सारे एक बार ऐड होंगे, तो वेडनेसडे 2 बार आ जाएगा, तो वेडनेसडे को साइड में ले लो। तो वेडनेसडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ये वैल्यू हमारा टोटल आ जाएगा 216। एंड वी नो दैट दिस टोटल इज 156, सो वैल्यू वेडनेसडे विल बी इक्वल टू 216 minus 156, which is equal to 60. So number of employees who attended the session on Wednesday, that will be equal to 60. Okay.
क्या ही क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose A, B, and C are three real numbers such that maximum of A, B, and C plus minimum of A, B, and C that is equal to 15 and median of A, B, and C minus mean of A, B, and C that is equal to 2. तो मीडियन ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा? मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है, मीडियन देखना है और मीन देखना है. ठीक है, मीडियन इज, अगर हम सारे के सारे नंबर्स को अरेंज करें इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन मीडियन इज द मिडिल प्लेस वैल्यू. मीडियन इज द मिडिल प्लेस वैल्यू. मीन इज सेम एज द एवरेज. मीन एवरेज आर वन एंड सेम थिंग्स. अब तीन नंबर्स हमें गिवन है ए बी सी. क्वेश्चन में हमेशा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, दिस क्वेश्चन लास्ट ईयर ओनली नाइट में एग्जामिनेशन कि ए बी एंड सी आर थ्री रियल नंबर्स. ठीक है, कभी क्वेश्चन में होगा थ्री रियल नंबर्स या फिर हो सकता था थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स. तो डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं है, यानी कि नंबर्स कैन ऑल्सो बी इक्वल. इक्वल भी होना पॉसिबल है, तो उस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं करना है. बट हम एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में कुछ भी उसके बारे में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी तीन नंबर्स हैं, तो लेट अस अज्यूम कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी. तीन नंबर्स हैं हमारे. लेस देन इक्वल टू साथ में इसलिए रखा है क्योंकि दे कैन ऑल्सो भी सेम. इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, सो ए लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी. अब अगर हमने ये ऑर्डर हमने इसलिए डिफाइन किया है बिकॉज हमें मैक्सिमम भी चाहिए और मिनिमम भी चाहिए. तो यहां से वी कैन नो फॉर श्योर दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू सी. इवन इफ सी एंड बी आर इक्वल, तो सी को मैक्सिमम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम विल बी इक्वल टू ए. जैसे ये वैल्यू मिल गया, अब पहला इक्वेशन में पुट कर दो कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू 15, यानी कि ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू 15. दिस और फर्स्ट इक्वेशन. देन मीडियन ऑफ ए बी एंड सी माइनस मीन ऑफ ए बी एंड सी दैट इज इक्वल टू 2. मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी द मिडिल प्लेस वैल्यू. तो मिडिल प्लेस वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू बी. सो बी इज द मीडियन and mean will be average, which is sum of a plus b plus c divided by 3. So b minus a plus b plus c by 3, this is equal to 2. And then a plus c is equal to 15 को यूज कर लो यहाँ पे. This will be b minus b by 3 minus a plus c by 3. ठीक है, b by 3 को सेपरेट कर दिया. So effectively that is equal to, so b minus b by 3 will be equal to 2b by 3. 2b upon 3 minus 15 by 3. That is equal to, so 2b minus 15 is equal to 6. 2b is 21 and hence b is equal to 10.5. और b हमारा मीडियन है, क्वेश्चन मीडियन ही पूछा है, तो मीडियन विल बी इक्वल टू 10.5. ऑप्शन बी इज द आंसर. ओके, 10.5 विल बी आवर आंसर इन दिस केस. क्या ही क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. A class consists of 30 students. Each of them has registered for 5 courses. Each course instructor conducts an exam out of 200 marks. The average percentage marks of all 30 students across all courses they have registered for is 80%. Two of them apply for revaluation in a course. If none of their marks reduce and the average of all 30 students across all courses becomes 80.02%. क्यों बढ़ा है ये? हमारे percentage was 80% initially, but now it is 80.02% because of revaluation. और revaluation किसने लिया है? Only 2 students have applied for revaluation in a course, only in a course. सारे के सारे courses में नहीं, because 30 students are there. Number of students is 30. Number of courses per student, that is equal to 5. And each course, ठीक है, marks per course, that is equal to 200. This is 200. So there is an increment of 0.02%. टोटल मार्क्स में देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 0.02% बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन. तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.02%. and then we can find out maximum possible increase in marks for either of the students, 2 students in that course. ठीक है, so 30 number of students, 5 courses for each student and 200 marks for each course. तो टोटल हमारे मार्क्स आ जाएंगे 100% मार्क्स आ जाएंगे 30 into 5 into 200. दिस इज टोटल मार्क्स. बट हमें चाहिए 0.02% of this value because that is the increase. आफ्टर रिवैल्यूएशन इंक्रीज इतने का ही आया. ठीक है, तो 0.02% of this is increase after revaluation. So 0.02% will be 0.02 divided by 100 multiplied by 30 into 5
इंटू 200, सो ये 2 0 से 2 0 चले गए. ओके, 0.02 इज इट सेल्फ 2/100, तो 2/100 इंटू 30 इंटू 5, 150 इंटू 2, 300. सो टोटल आ जाएगा 2/100 इंटू 300, दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स. आफ्टर रिवैल्यूएशन देयर इज अ चेंज, देयर इज एन एडिशन, देयर इज अ इंक्रीज बाय 6 मार्क्स, एंड दैट हैज हैपेंड इन टोटल 2 कोर्सेस. ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ देम अप्लाई फॉर द रिवैल्यूएशन, तो ये दोनों के जो मार्क्स का इंक्रीज है दैट टोटल इज इक्वल टू 6. क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन मार्क्स फॉर ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीदर ऑफ नन ऑफ देयर मार्क्स हैव रिड्यूस्ड. सो मार्क्स किसी के भी घटे नहीं है, रिड्यूस नहीं हुए. सो या तो एज इट इज रहे होंगे, या तो एज इट इज रहेंगे, यानी कोई इंक्रीज नहीं आया, या फिर इंक्रीज हुआ होगा. टोटल जो हमारा इंक्रीज है दैट इज 6 मार्क्स का. तो क्या केस बन सकता है भाई? ये हो सकता है कि वन स्टूडेंट के मार्क्स 0 से इंक्रीज हुए, यानी इंक्रीज नहीं हुए, सेम रहे, एंड वन स्टूडेंट्स मार्क्स इंक्रीज बाय 6, और 1+5, एक स्टूडेंट के मार्क्स 1 से इंक्रीज हुए, एक के 5 से इंक्रीज हुए, और 2+4, और बोथ स्टूडेंट्स मार्क्स गॉट इंक्रीज बाय 3 and 3 ईच. ठीक है, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 6. डिक्रीज हुआ नहीं, अदरवाइज और इंक्रीज हो सकता था, -1+7 भी हो सकता था, -2+8 भी हो सकता था. कि अगर क्वेश्चन ये कहता कि डिक्रीज भी हुआ होगा तो 5 से ज़्यादा का डिक्रीज नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर 5 का डिक्रीज हो सकता है तो मे बी एक स्टूडेंट के मार्क्स -5 हो गए और एक के हो गया 11, तो वहाँ पे 11 भी आ सकती थी वैल्यू. ठीक है, अगर डिक्रीज भी पॉसिबल होता तो, बट वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारा इस केस में हो जाएगा 6 इन टोटल. दैट मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज इन द मार्क्स विल बी इक्वल टू 6. दिस इज अवर आंसर. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Imagine that there are 459 managers in a hotel. If the number of managers is enlarged by 36, the expense of the food increased by rupees 81 per day, while the average spending per head decreased by 1. Find the original spending of the hotel on the food. So initially number of managers, that is equal to 459, and that has increased by 36. So number of managers will be equal to 495. After the increase, expense of the food increased by rupees 81 per day, and average spending per head decreased by 1. तो फाइंड द ओरिजिनल स्पेंडिंग ऑफ द होटल ऑन द फूड. तो हम मान लेते हैं कि अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल स्पेंडिंग ऑफ द होटल ऑन द फूड. लेट अस अज्यूम कि ओरिजिनल स्पेंडिंग वाज इक्वल टू एस. ओरिजिनल स्पेंडिंग वाज इक्वल टू एस. तो दैट ओरिजिनल स्पेंडिंग इंक्रीज्ड बाय रुपीज 81. ये स्पेंडिंग है, एवरेज नहीं है. ठीक है, स्पेंडिंग इफ दैट वाज इनिशियली एस, सो नाउ इट विल बी एस प्लस 81. And due to this, the average spending per head decreased by 1. क्वेश्चन बनाते हैं इस पर. ठीक है, सो अब हमारा क्या हो गया है, s plus 81 इज स्पेंडिंग नाउ. एवरेज विल बी s plus 81 डिवाइड बाई 495, एंड दिस न्यू एवरेज इज 1 लेस देन द ओरिजिनल एवरेज. ओरिजिनल एवरेज था हमारा s upon 459. तो नाउ दिस इज s upon 459 -1. ध्यान से देख लो शक्ल इसकी सही है कि नहीं. ठीक है, क्या क्लियर है? मल्टीप्लाई कर देते हैं 495 से. ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाई 495, so s plus 81, this will be equal to 495 upon 459 into s minus 495. ठीक है, अब 495 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं, s को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं. 495 plus 81, this will be equal to 495 upon 459 times s minus s, यानी this minus 1 times s. Now left hand side becomes 495 plus 81, that is equal to 576. So 576, this is equal to 495 by 459 minus 1. This will be 495 minus 459, which is equal to 36 upon 459 टाइम्स s. कैलकुलेशन को जितना आसान रख सकते हो उतना आसान रखना है. 36 से कैंसिल करना है 576 को, सो 6 से जाएगा. 24 का स्क्वायर है वैसे तो 576. ठीक है, पहले 6 से कर लिया, तो दिस इज 6 एंड दिस विल बी 6 9 are 54, so 96 and then 16. So s becomes equal to 16 into 459. ये हमारा आंसर हो जाएगा. 16 9s are 144.
14 कैरी हो गया, 80 और 14 94, 9 64 प्लस 9 7344 रुपीज. दिस विल बी आवर आंसर. 7344 रुपीज. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ठीक है, एक अप्रोच ये हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि यहाँ पे हमने स्पेंडिंग को एज्यूम कर लिया कि अल्टीमेटली हमें स्पेंडिंग फाइंड आउट करना है, और फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉशियस रहे. ऐसा क्योंकि गलती का हम क्या कर सकते थे कि हम राइट हैंड साइड में पहले एलसीएम ले लेते, किसको ले लेते, एस माइनस 459 डिवाइड बाई 459, फिर मल्टीप्लाई कर देते 495 से, तो वैल्यूज बड़ी खतरनाक हो जाती. क्योंकि फिर हमारी वैल्यू क्या होती है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते 495 से, 495 इंटू 459, अब वो वैल्यूज बड़ी क्रूशल हो जाती है, फिर बाद में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता हो जाता. बट ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कभी कैलकुलेशन हमारी है तो जितना सिंपल फॉर्मेट रख सको उतना अच्छा है. ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एवरेज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट अस से इनिशियली हमारा एवरेज इज इक्वल टू ए. इनिशियल एवरेज इज इक्वल टू ए, स्मॉल ए मान लेते हैं कि इनिशियली एवरेज इज इक्वल टू स्मॉल ए. हालांकि इस क्वेश्चन का ऑप्शंस के साथ में एक बेस्ट अप्रोच भी है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि ऑप्शंस की शक्ल जो ऐसी है कि और भी आसान हो जाएगा. तो एवरेज इनिशियली अगर ए है तो फाइनली इट बिकम्स ए माइनस 1. एंड इफ एवरेज इनिशियली इज इक्वल टू ए, इनिशियली पर्सन हमारे 459 फाइनली हो जा रहे हैं 495. तो अगर पर्सन 459 है और एवरेज हमारा ए है तो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा, 459 इंटू ए होगा, और इंक्रीमेंट आया इसमें 81 का, तो प्लस 81. दिस इज इक्वल टू फाइनली हमारा एक्सपेंडिचर हो गया 495 इंटू ए माइनस 1. यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 495 टाइम्स ए माइनस 495. ठीक है, सो 495 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे. 495 प्लस 81 इज इक्वल टू 576 एंड दिस इज इक्वल टू 36 ए. सो यहाँ से ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16. और जैसे ए यानी कि इनिशियल एवरेज 16 आ गया, हमें ओरिजिनल स्पेंडिंग तो चाहिए, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 459 विच इज 7344. ओके, वैसे हमारी जो वैल्यूज हैं इनिशियली मैंने जैसे 459 फाइनली है 495, और साथ में हमें ऑप्शंस दिए हैं 7344 7244 7044 7444. सारे ऑप्शंस के बीच में 100 का गैप है. ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो कि 459 इनिशियल जो नंबर है, क्योंकि हमें इनिशियल ओरिजिनल स्पेंडिंग ही तो चाहिए, तो दैट इज फॉर 459. सो कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो कि 459 का मल्टीपल है, और कोई एक ही आंसर होगा जो कि हमारा 459 का मल्टीपल होगा. अब ये देखेंगे कैसे, 459 से डिवाइड तो सीधे से नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे ही देखना पड़ेगा कि हमारा लास्ट का डिजिट देखो 459 में. ठीक है, हमें चाहिए 459 का मल्टीपल, तो लास्ट डिजिट आ रहा है 9 और लास्ट डिजिट हमारा सारे ऑप्शंस में आ रहा है 4. ठीक है, और डेफिनेटली 10 टाइम से ज़्यादा है. 459 इंटू 10 करेंगे तो दैट विल 4590. ठीक है, तो ये 15 टाइम्स के आसपास आ रहा है, रफली 15-16 के टाइम के आसपास आ रहा है. और 9 में 5 मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, 5 आएगा. 9 में 6 मल्टीप्लाई करोगे 9 6 54, यानी कि लास्ट में यू डेट में 4 आएगा. तो हमारा आंसर मस्ट बी 459 इंटू 16. अगर हम 4 करेंगे 9 मल्टीप्लाई तो लास्ट में 6 आएगा. ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसे भी देख सकते हो कि 9459 इंटू 16 को चेक कर लो और हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा. और इतना ही करना काफ़ी होगा. ओके, अगर हमारा बाद का स्पेंडिंग पूछता है तो दैट वुड हैव बीन मल्टीपल ऑफ 495. ओके, ऑप्शंस हैं इसलिए ऐसे इसको कर सकते हैं. ऑप्शंस डिफरेंट होते तो अप्रोच हमारा जैसे हमने किया वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The average of 5 distinct integers is 110 and the smallest number among them is 100. The maximum possible value of the largest integer क्या होगा. 5 distinct integers लिखा हुआ है साफ साफ. That numbers are distinct. सारे के सारे integers भी हैं और distinct भी हैं. All are integers and all are distinct. और smallest number among them is 100. तो maximum possible value of the largest integer क्या होगा. जब भी कभी हमें चीज़ें फिक्स्ड हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एवरेज फिक्स्ड है, एवरेज फिक्स्ड है तो सम भी फिक्स्ड हो गया. अगर सम फिक्स्ड हो गया और हमें किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू द लार्जेस्ट इंटीजर, तो अगर किसी एक वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सारी वैल्यूज को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा. भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज़ है, मुझे 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और 5 में से तो मेरे पास रुपीज़ तो फिक्स है, टोटल अमाउंट 100 ही है. अब मुझे 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सो दैट किसी एक के पास मैक्सिमम हो. तो उस एक के पास मैक्सिमम कब होगा, जब बाकी सबके पास मिनिमम हो. है कि नहीं, सीधी सी बात है. एक के पास मैक्सिमम तभी होगा जब बाकी सबके पास मिनिमम हो. तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अगर एक वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो बाकी सबको मिनिमाइज करना पड़ेगा. अगर कोई एक बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है तो बाकियों को गरीब होना पड़ेगा. है कि नहीं, तो ऐसा ही होता है. तो इनफैक्ट 5 इंटीजर्स हमारे ए बी सी डी. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी दैट सम इज इक्वल टू, हमारा एवरेज 110 है तो सम क्या आएगा 110 इंटू 5. तो सम विल बी 550 550.
एंड वन ऑफ दीज वैल्यूज स्मॉलेस्ट अमंग देम इज 100, तो लेट अस से ए हमारा स्मॉलेस्ट है। मान लेते हैं ये नंबर्स हमारा ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी एंड डी इज लेस देन ई, क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ए स्मॉलेस्ट है, ए को मान लिया हमने 100, एंड देन हमें मैक्सिमाइज करना है किसको, ई को। ई हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, जिसको मैक्सिमाइज करना है उसके अलावा बाकी सबको मिनिमम कर दो। कितना मिनिमम कर सकते हैं, क्योंकि सबको डिफरेंट रखना है, तो इफ ए इज 100 तो बी मिनिमम हो सकता है 101, कैनॉट बी 100। ठीक है, अगर इक्वल हो सकते तो बी को भी 100 कर देते। सी मिनिमम हो सकता है 102, कैनॉट बी 101। डी मिनिमम हो सकता है 103। अब जो बची हुई वैल्यू है सारी की सारी ई को मिल जाएगी। सो 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103, दैट टोटल इज इक्वल टू 406। सो ई विल बी इक्वल टू 550 minus 406 and hence equal to 144। आंसर आ जाएगा 144। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average marks of 6 students in a test is 64, all the students got different marks, one of the students obtained 70 marks and all other students scored 40 or above, the maximum possible difference between the second highest and the second lowest marks क्या होगा। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट मार्क्स, यानी हमें सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट मार्क्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस चाहिए। 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो लेट अस अगेन एज्यूम कि मार्क्स हमारे ए बी सी डी ई एंड एफ, एंड दैट टोटल एवरेज हमारा 64 है, टोटल विल 64 इंटू 6, दैट इज 360 प्लस 24 384, सम इज 384। तो वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट मार्क्स 70। अब ये कौन है हमें पता नहीं, क्योंकि अगेन हमें सारे के सारे मार्क्स को डिस्टिंक्ट रखना है, डिफरेंट रखना है। सो अगेन एज्यूम कर लेते हैं कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी इज लेस देन ई इज लेस देन एफ, so that A is minimum and F is maximum, and all the students got 40 और above marks, यानी कि मिनिमम हमारा 40 हो सकता है, 40 होना पॉसिबल है बिकॉज 40 इज ऑल्सो देयर। अबव 40 नहीं है, 40 और अबव, यानी कि 40 इज ऑल्सो पॉसिबल, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट। तो अगर सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट के बीच का हमें डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, यानी कि हमारा लोएस्ट वैल्यू जितना लो हो सके उतना अच्छा है, हाईएस्ट वैल्यू जितना हाई हो सके उतना अच्छा है। तो दोनों चीज़ों को हमें बीच में गैप मैक्सिमम करना है, गैप को मैक्सिमाइज करना है। तो लोवेस्ट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, हाईएस्ट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो दोनों को हमें गैप को मैक्सिमाइज करना है, और लोवेस्ट हमारा कितना लो जा सकता है, 40 और अबव, यानी कि मिनिमम कैन बी 40। तो ए को मिनिमम रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 40। सेकेंड लोएस्ट क्या होगा, बी, क्योंकि ए के इक्वल तो नहीं हो सकता, ऑल स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स, तो बी कैन बी 41। ओके, सी, सी को भी कर देते हैं क्या 42, क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट के बीच का गैप मैक्सिमम रखना है। सो गैप बिटवीन बी एंड ई शुड बी मैक्सिमम। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बी एंड ई के गैप का बीच का जो गैप है दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो 40 41 42। अब डी को क्या कर सकते हैं, अगर हमने डी को फॉर एग्जांपल 43 कर दिया, कर सकते हैं, बट हमने डी को 43 कर दिया, तो अब ई की वैल्यू क्या होगा, थिंक अबाउट इट, क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स ऑल्सो। सो एक स्टूडेंट को 70 मार्क्स मिले हैं, जैसे ही हमने डी को 43 कर दिया, ई विल बी इक्वल टू 70, और फिर एक्स एफ मैक्सिमाइज हो जाएगा। एफ की तो बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगी, बट प्रॉब्लम ये है हमें डिफरेंस चाहिए बिटवीन सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट। तो जैसे ही हमने डी को 43 कर दिया, तो ई फॉर श्योर 70 हो जाएगा, और फिर एफ मैक्सिमाइज हो जाएगा, और डिफरेंस हमारा आ जाएगा 41 और 70 के बीच का डिफरेंस, दैट विल नॉट बी मैक्सिमम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी के मार्क्स को 70 करना पड़ेगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हमें डी के मार्क्स को 70 करना पड़ेगा, तो डी के मार्क्स कर दो 70। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है सी के मार्क्स को 70 करते हैं, हाँ सी के मार्क्स को 70 करके भी देख सकते हो, बट अगर सी के मार्क्स को 70 कर दिया, तब फिर हमारे डी ई एफ तीन नंबर्स में तुम्हें रिमेनिंग नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ई हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू नहीं रहेगा। इन दैट केस ई विल नॉट बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, इजंट इट सो। और हमें क्या करना है, ई को मैक्सिमाइज करना है, तो सी को 70 नहीं करेंगे, डी को 70 करेंगे। 70 को जितना लास्ट तक लेके जा सकते उतना बेटर था, 70 को ई पे लेके चले जाओगे तो अल्टीमेटली ई के मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं होंगे, दैट इज वाई डी शुड बी 70 फॉर श्योर। और फिर ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले निकाल लो सम हमारा फॉर फर्स्ट 4, 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 70, दैट इज इक्वल टू 123 प्लस 70, 203, टोटल इज 384, 384 माइनस 203,
दिस इज इक्वल टू 181, सम आ गया 181। अब इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ई मैक्सिमाइज हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिफरेंस करना है बी और ई के बीच का मैक्सिमम। ठीक है, तो ई को मैक्सिमाइज करना है हमें। हमारा पर्पज एफ को मैक्सिमाइज करना नहीं है, हमारा पर्पज है ई को मैक्सिमाइज करना। ई कितना लार्ज वैल्यू हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है ई इज लेस देन एफ, तो ई मैक्सिमाइज भी होगा तो भी एफ से तो छोटा ही रहेगा ना। ठीक है, सो दैट इज वाई अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना आता है 90.5, 181/2 90.5, तो ई शुड बी 90 एंड एफ शुड बी 91। ई 90 आ जाएगा, एफ 91 आ जाएगा, एंड हेंस डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई 90 एंड 41। एक सेकेंड, हमने ठीक किया है ना, 64 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 384 आ गया, ठीक है। और एक को मिले हैं 70, सो 123 + 70 203, 181, तो 90 91, कुछ तो गड़बड़ किए हैं। ये 203 नहीं था, 193 था, 193 था। दिस इज 193, सो -193 विल बी इक्वल टू 191। 191/2 करेंगे सो दैट विल इक्वल टू 95.5, यानी कि एक नंबर हमारा हो जाएगा 95, वन विल बी 96, सो ई विल बी 95 and f will be 96. The difference between b and e maximum will be 41 and 95 का difference, that is equal to 54। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि वो लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। ठीक है, सो डिफरेंस हमारा होगा 41 एंड 95 के बीच का, दैट इज इक्वल टू 54। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let 50 distinct positive integers be chosen such that highest among them is 100 and the average of largest 25 integers among them exceeds average of the remaining integers by 50. The average of the largest 25 that is exceeding average of the remaining integers by 50. So total 50 है, out of 50 we have largest 25 and the remaining 25 and initial 25, smaller 25, smallest 25. And if average of largest 25 is equal to a, so that of smallest 25 is कितना है 50 लेसर है, तो दिस इज a minus 50। हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द 50 इंटीजर्स, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल 50 इंटीजर्स मैक्सिमाइज करना है, और हाईएस्ट अमंग देम इज 100, तो ये भी कंडीशन है। अगर हमें सम को मैक्सिमाइज करना है तो यानी कि सारी की सारी वैल्यूज को ही मैक्सिमाइज करना है, सब वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो अगर हमारा हाईएस्ट 100 है और सारे नंबर्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, इंटीजर्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अगर हाईएस्ट 100 है सेकंड हाईएस्ट क्या होगा, क्योंकि सबको मैक्सिमाइज करना है, तो सेकंड हाईएस्ट को 99 रखेंगे, थर्ड हाईएस्ट को 98 रखेंगे, फिर 97 रखेंगे, फिर 96 रखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो लार्जेस्ट 25 क्या हो जाएंगे हमारे, क्योंकि वहां तक कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद में कंडीशन ये कि स्मॉलेस्ट 25 का जो एवरेज है 50 लेसर होगा, तो लार्जेस्ट 25 निकाल लो, तो लार्जेस्ट 25 क्या हो जाएंगे 76 से 100 तक के सारे नंबर्स हो जाएंगे, 76 77 78 79 80, 76 से 100 तक के सारे नंबर्स, दोज विल बी लार्जेस्ट 25, क्योंकि सब मैक्सिमाइज करना है तो इनको मैक्सिमाइज कर दिया हमने, 100 से ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए स्टार्ट किया 76 से। एवरेज क्या होगा, क्योंकि एवरेज जो भी आएगा हमारा इन वैल्यूज का उसमें 50 लेस करके बाकी स्मॉलेस्ट 25 का हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, सो सम क्या होगा, सम ऑफ लार्जेस्ट 25, दिस विल बी इक्वल टू एवरेज हमारा आएगा 76 + 100 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, क्योंकि AP बन रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर्स विच इज 25, तो 176/2 88 इंटू 25 विच इज इक्वल 2200 2200। एवरेज हमारा आया 88, a comes out to be equal to 88, and if a is 88, a minus 50 will be 88 minus 50 equal to 38। अब बस हमें एवरेज निकालना था, एवरेज आ गया है 38, एवरेज आ गया हमारा, तो नंबर्स निकालने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 38 अगर एवरेज है हमारा तो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्मॉलेस्ट 25 विल बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 25, 38 इंटू 25। ठीक है, तो 760 + 190 सो 950,
950 इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 25 और 2200 लार्जेस्ट 25, तो टोटल सम आ जाएगा 2250 प्लस 950 एंड इज इक्वल टू 3150. Total sum, maximum possible sum will be 3150. क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछता डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर तो 100 हो गया, स्मॉलेस्ट हमारा 1 हो सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज 38 तब भी आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि टोटल 25 नंबर्स है, तो 1 रख सकते हो तुम एवरेज को, मिनिमम वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, क्या क्लियर है? क्योंकि 38 अगर हमें एवरेज चाहिए, हमने एक नंबर को 1 रख दिया, एक को 75 रख दिया, तो भी हमारा एवरेज 38 आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बाकी नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. हाँ, दीज ऑल द क्वेश्चंस आई बिलीव, जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी. अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.